تو کرامات دکھانے اور کرامات سنانے کا نام فقیری نہیں ہے. بھوت اور پریت کی تسخیر کو طریقت نہیں کہتے. لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو طریقت کہتے ہیں. سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے اور 146 نمبر آیت ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. جناب اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا کتنے ہی اچھے سے آگے ان کے ساتھ بہت سے خدا والے تھے. اور ذرا یہ دوبارہ پڑھیں. اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ کا معنی ہے اللہ نے کتنے نبیوں کو بھیجا. یہ نبیوں کو کس نے بھیجا؟ یہ جو آگے کہہ رہے ہیں نا جہاد کیا وہ قاتلا کا معنی ہے، لیکن میں ابھی قاتلا کا معنی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آگے ہے ماہو. ماہو کا کیا معنی ہے؟ ان کے ساتھ. نبیوں کے نہیں بولے سارے، نبیوں کے ساتھ. ربیونا کیا معنی ہے؟ بہت سے خدا والے تھے. خدا والدہ کی معنی ہے اللہ والے. خدا والدہ کی معنی ہے بھائی. ربیون کا معنی کیا ہے؟ اللہ والے. ابھی ہم لفظ قاتلا کا معنی نہیں کر رہے، میں بعد میں کر دیتا ہوں، لیکن پہلا لفظ یہ ہے کہ نبی بھی اللہ نے بھیجے ہیں اور اللہ والے بھی اللہ نے بھیجے ہیں. اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ نبی. پہلے کیا بھیجا ہے؟ نبی. پھر نبیوں کے ساتھ کون آئے ہیں؟ اللہ والے. کون بھیج رہا ہے جی؟ پتہ چلا قرآن کا فیصلہ ہے. تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی. تمہیں نبیوں کو بھی ماننا پڑے گا، اللہ والوں کو بھی ماننا پڑے گا. جیسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ اونچی آواز سے. قرآن کا فیصلہ ہے کہ تمہیں نبیوں کو بھی ماننا پڑے گا اور اللہ والوں کو بھی ماننا پڑے گا. یار بندیاں دی تون تے گوڈا رکھ کے قرآن جڑا نا بندیاں نو اللہ والے منوا رہا ہے. پتہ چلا جان نہیں چھوٹ سکتی اللہ والوں کے ماننے کے بغیر. اللہ والوں کو ماننے کے بغیر جان چھوٹ سکتی نہیں چھوٹ سکتی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ ایک باری سارے آکھو اللہ والے تے مننے پہنے نے. کنہاں نو؟ وہابیاں نو، سنیاں نو، شیعاں نو، دیوبندیاں نو، اہل حدیثاں نو، پرویزیاں نو، چکڑالویاں نو تے جیل میاں نو جنہاں دے گھر قرآن موجود ہے نا انہاں نو اللہ والے دے مننے پہنے. اللہ والے اچھا بولو سارے. اللہ والے. اللہ والیاں تو پچھا نہ چھڑایا جے. اللہ والیاں دا دامن نہ چھڑیا جے. اللہ والے آ لکھے ہے. اے کی لکھے ہے؟ میں بڑا مزہ پہ آؤں ہے. اے کی لکھے ہے؟ اللہ والے. اللہ والے تو ماننے پڑیں گے. اب اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ اب شروع سے پڑھے. وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا. جہاد کیا نبیوں نے. ان کے ساتھ بہت سے خدا والے تھے. بہت سے خدا والے نبیوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے لڑتے رہے. پتہ چلا اللہ والے صرف دم نہیں کرتے، اللہ والے صرف فاتحہ نہیں پڑھتے، تقریریں نہیں کرتے، ختم نہیں دیتے، لڑ بھی پڑھتے ہیں. داتا صاحب جاتے ہیں جناب، کیا منظر ہے، کیا نورانیت ہے، کیا ماحول ہے، کیا خوبصورتی ہے. لیکن داتا صاحب تو سید ہیں اور پھر عالم بھی ہیں، سید بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. لیکن میں جب داتا صاحب سے نکل کر تھوڑا سا آگے جاتا ہوں نا، چبرجی کراس کرتا ہوں تو آگے ایک قبرستان ہے، اس میں میانی صاحب قبرستان ہے، اس میں قبر ہے.
اچھا جو نور داتا صاحب کی قبر پہ ہے نا اس قبر پر بھی وہی نور ہے، جو روحانیت داتا صاحب کے مزار پر ہے وہاں پہ بھی وہی ہے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یار یہ تو مغل ہے، مستریاں دا منڈا ہے، اتوں مزدور ریڑی دا، نہ عالم ہے نہ فاضل ہے، نہ انہیں مسلح تے جماعت کرائی، نہ انہیں ممبر تے تقریر کی تھی، انہوں ایڈا مقام کیویں لبا ہے؟ وہ پھر سارا لاہور دس دے محمد دی عزت تے کدھر لڑ کے مر گیا سی۔ پتہ چلا اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کا کوئی ذاتی ویر نہیں ہوتا، وہ جائیداد کے لیے نہیں لڑتے، زمین کے لیے نہیں لڑتے، ان کی اگر صلح ہے تو محمد کے لیے ہے، لڑائی ہے تو نبی کے لیے ہے۔ اچھا بھی سورہ مائدہ سے 82 نمبر آئے تو پڑھا دیں آئی ذرا۔ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین، یہ آیت نا ساری نہیں پڑھ سکا میں، چلیں اس کو پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ سے ایک آیت سامنے آ گئی ہے، 82 نمبر آیت ہے اور 5 نمبر سورہ ہے، اسے آیت پڑھوں گا۔ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ جناب ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ اللہ فرماندہ ہے محبوب قیامت آ سکتی ہے، یہودی تیری امت کی عزت نہیں کریں گے کبھی بھی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ پھر پڑھوں میں، میرا محبوب قیامت آ سکتی ہے لیکن یہودی مسلمانوں کی عزت، گھبرا گئے ہو بولو، یہودی مسلمانوں کی عزت نہیں کریں گے۔ کاش حکمران قرآن پڑھے ہوتے تو انہیں سمجھ آ جائے کہ جن کی نوکری کر رہے ہو نا، قیامت آ سکتی ہے حضور کی امت کی عزت نہیں کر سکتے۔ والذین اشرکوا، اور مشرکوں، گاں کا موتر پینے والا کعبے کو سجدہ کرنے والے کی عزت نہیں کرے گا، بت پوجنے والا قرآن کو چومنے والے کی عزت نہیں کرے گا۔ اچھا پھر جی وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ضرور تم، اچھا رک جاؤ، پس منظر کیا ہے اس آیت کا، کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ دیکھیں مکے میں نبی پاک کا رہنا مشکل ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، میرا محبوب اپنے غلاموں سے کہو کہ سوڈان کی طرف چلے جاؤ۔ سوڈان اس وقت کا حبشہ، آج کے نقشے میں سوڈان کی طرف چلے جائیں حبیب، وہ نجاشی بادشاہ، یہ وہ آیت ہے نجاشی بادشاہ والی کہ اللہ نے آیت نازل کر کے کہا کہ سرکار محبوب ان سے کہو کہ نجاشی کے علاقے میں سوڈان کا حبشہ کا سفر کرے، وہاں جا کے ان کا گشا سوکھا ہو جائے گا۔ اب آیت کو آگے سنیں جی جناب۔ اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے، اللہ نے فرمایا محبوب میں ضمانت دیتا ہوں، کچھ بندے ہیں جو تیری ساری امت سے پیار کریں گے، میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کیمرے چل رہے ہیں، محبوب میں ضمانت دیتا ہوں کچھ بندے ہیں جو تیری ساری امت کی عزت کریں گے، پیار کریں گے، ان کا درد سمجھیں گے۔ پتہ کیوں؟ ذالکا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ، جناب اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ ذالکا، یہ اس لیے، ذالکا، یہ اس لیے محمد پتہ ہے کیوں تیری ساری امت کا درد رکھن گے؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں وَرُهْبَانَا، اور درویش بھی ہیں۔ پتہ چلا قرآن بتا رہا ہے جس کے دل میں نبی کی ساری امت کا درد ہو اللہ اسے درویش کہتا ہے۔ ہائے ہائے، وہی بولو جسے سمجھ آئیے۔ میں پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، اوے جس کے دل میں نبی کی ساری امت کا درد ہونا اللہ اسے درویش کہتا ہے۔
ओए मेरा दिल करता है मैं फिर पढ़ा, जिसके दिल में नबी की उम्मत का दर्द हो, मोहम्मद का रब कहता है ये है दुर्वेश। एक बारी लफ्ज बोलो वाला, की लफ्ज है? दुर्वेश, दरवेश नहीं, क्या लफ्ज है? दुर का माना मोती होता है, वेश का माना देने वाला होता है, जो गोदड़ी से निकाल निकाल कर मखलूक को मोती दे उसे दुर्वेश कहते हैं। हाय हाय हाय, उसे क्या कहते हैं? जिसके दिल में नबी की उम्मत का दर्द हो, कुरान उसे दुर्वेश कहता है। दोबारा पढ़ेंगे, जालिका बिअन्ना मिनहुम किसिसीना व रुहबाना। दोबारा आयत का तर्जुमा दे, नहीं यहीं से। ये इसलिए उनमें आलिम भी है, और दुर्वेश भी है। कुरान ने आलिम को अलग रखा, दुर्वेश को अलग रखा, ताकि बंदों को समझ आ जाए सारे पढ़े लिखे दाराबा यदरिबू दुर्वेश नहीं होंगे। आलिम आलिम है, दुर्वेश दुर्वेश है। हाय हाय, आलिम को अलग रखा और दुर्वेश को फिर पढ़ो सही शाह साहब। और ये इसलिए कि उनमें आलिम भी है और दुर्वेश है, ताकि समझ आ जाए सारे पग पाके ते जुब्बे पाके दुर्वेश थोड़ी हो जाएंगे। आलिम में दुर्वेश है। नहीं तो अड्डा की ख्याल है यार, ये जो हीरा होता है ये पत्थर ही होता है भाई। हीरा क्या होता है भाई? हीरा तो पत्थर है, लेकिन सारे पत्थर हीरे थोड़े हो गए हैं। ठंडा बोले हो, वो आलिम था ना। आया बाबा फरीद कुल सरकार धियां जवान हो गई ने, कोई मेहरबानी करो, कोई दुआ करो। आपने फरमाया कोई मिट्टी का टेला लिया, वो मिट्टी का टेला लेके आया, सरकार ने बाबा दे बुलंद सूरह फातिहा पढ़ी, वो सोना बन गया। वो घर मुंडिया नूं कहन लगा मारो टप मिट्टी दे, नाले ते सौदा लभ गया, नाले बाबिया नूं सिया दे दिता है। सारी रात मिट्टी दी ट्रालियां ते फातिहा पढ़ पढ़ मर गया। सवेरे मिट्टी दी मिट्टी रह गई, सुबह जाके कहने लगा सरकार तुसी एक बारी पढ़ो सोना बन जाए, मैं सारी रात पढ़ाऊं मिट्टी रवे। फरमाया तू आलिम है, मैं दुर्वेश उनमें आलिम भी है और दुर्वेश भी है। आपको समझ आ रही है? उनमें जरा फिर पढ़ो। ये इसलिए कि उनमें आलिम और दुर्वेश है। आलिम और दुर्वेश, हाँ जी, आलिम और है, दुर्वेश और है। हर आलिम दुर्वेश हो सकता नहीं, ऊंचा बोलो नहीं। लेकिन आलिम पहले आया है, दुर्वेश बाद में आया, ताकि जमाने को समझ आ जाए हर आलिम तो दुर्वेश नहीं होता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो दुर्वेश और आलिम ना हो। आए आए, जिसे समझ आई है उसको बोलना चाहिए था। हर आलिम दुर्वेश नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो दुर्वेश हो और आलिम ना हो। पता चला हर आलिम दुर्वेश नहीं होता, लेकिन दुर्वेश आलिम जरूर होता है। भाई गुस्तामी बैठे, एक गवांडी आया, सरकार आओ, एक फकीर आया, एक पीर आया, एक दुर्वेश आया, एक वली आया साढ़े घर। आपने फरमाया मैंने जरा सबक पढ़ा लें दे, मैं आ जाना। और सबक मुकम्मल होया, अब्बा यजीद तुलबा नूं इकट्ठा कीता, आओ यार चलिए बुजुर्गों की जियारत करके आइए। वो गुआंढी की कुंडी खटखटाई, भाई मिला बुजुर्गों नाल, उस आख्या टुर गए। अच्छा भाई जिथे बैठे ने ओदी जगह की जियारत करा, उस आख्या बैठे ही नहीं। अच्छा खाना खा के गए ने, बर्तन विखा दे, उस आख्या उन्हें खादा ही कख नहीं। वो फरमान लगे कुछ ते कीता ने, नमाज पढ़ गए ने, चलो भाई फिर वो मुसल्ले की जियारत करा जिथे पढ़ी ने। बा यजीद मुसल्ले की जियारत कर रहे ने, सारा वेखन तो बाद आंदे ने बंदे अच्छे सन, नेक सन, पर दुर्वेश नहीं सन। उस आख्या साडे पीर ने, ओ पीर तेरा होगा पर दुर्वेश नहीं है। उस आख्या एडे वड्डे बंदे, उस आख्या बंदे अच्छे ने यार, नेक ने, लेकिन दुर्वेश नहीं।
اس آخیا تمہیں کیویں پتا ہے درویش نہیں؟ آپ نے فرمایا انہوں تو یہ نہیں پتا محمد نماز ہاتھ کتنے رکھتے رہے نے۔ جس بندے نو اینا نہیں پتا کہ نبی نماز ہاتھ کتنے رکھتے نے، وہ درویش کتوں ہو گیا ہے؟ نیک آدمی ہوئے گا، درویش نہیں ہوئے گا۔ درویش کے لیے عالم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو جنہوں سمجھ آ رہی ہے تو اڈا پیر جاہل ہے، جہاں پیر صاحب علم ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ خواجہ معین الدین تشریف فرما نے، ضیاء الدین بلخی بڑا وڈا علامہ ہے، انہوں درویشاں نوں بڑی چڑ سی۔ وہ جناب انہوں پتہ لگا معین الدین ساڈے علاقے چائے نے، وہ گھر بہ کے مناظرہ تیار کردا ہے دل دی تختی تے، اے سوال کراں گا، اے سوال کراں گا، اے سوال کراں گا، پیراں تھلوں زمین کٹ دیاں گا، معین الدین نوں اے سوال کراں گا۔ معین الدین بادشاہ لنگر پہ کردے سن، مولانا صاحب آئے نے، سرکار نے فرمایا مولانا صاحب ایک لقمہ تے کھاؤ لنگر دا۔ وہ لنگر دا لقمہ منہ وچ پایا تے اپنا نام ہی بھول گئے، اپنے پیو دا نام ہی بھول گئے، دماغ وچوں نکل گیا میں آیا کدھر ہاں، اے کون نے؟ معین الدین فرمانے مولانا اگلا لقمہ کھاؤ۔ جب سارا کچھ یاد آیا نا، معین الدین فرمانے اینا کافی ہے کہ مناظرہ شروع کیتا جائے۔ ذالکا بین منہم کسی سینا ورہبانا، کیا معنی ہے؟ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی نہیں، رک جاؤ۔ پہلی بات آپ کو کیا ملی ہے کہ نبی ماننے بھی ضروری ہیں اور اللہ والے ماننے بھی ضروری ہے۔ دوسری بات آپ کو کیا ملی ہے کہ اللہ والے صرف شریف نہیں ہوتے، لڑ بھی پڑتے ہیں، لیکن ان کی لڑائی اپنی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی، ان کی لڑائیاں محمد کے لیے ہوتی ہیں۔ محمد کی عزت پر جو پہرے دیتے لڑتے مرتے ہیں نا، وہ درویش ہوتے ہیں نا۔ اچھا، تیسری بات آپ کو کیا ملی ہے؟ جس کے دل میں نبی کی ساری امت کا درد ہے نا، اللہ اسے درویش کہتا ہے۔ چوتھی بات آپ کو کیا ملی ہے کہ ہر عالم درویش ہوتا نہیں ہے۔ پانچویں بات آپ کو کیا ملی ہے؟ لیکن جو درویش ہو وہ عالم ضرور ہوتا۔ یہ 5 گلاں قرآن چو نکل آئیاں نے، اجازت دیو پھر اگے پڑھیے۔ ٹائم ضائع تے نہیں ہوندا پیا۔ ذالکا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سبحان اللہ جناب، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے، اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ فرمایا جدو بندے پڑھ کے تون چو سریے کر دینا پھر درویش ہو جاندے نے۔ ہائے ہائے ہائے، تون دا سریا تے درویشی کٹھی نہیں رہ سکتی۔ اے تون چو سریے نکل جانا، رب آندہ ہون درویش ہو گیا ہے۔ اور مجھے مزہ آ رہا ہے اور مجھے بڑا سواد آ رہا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، تکبر اور فقیری کٹھی نہیں رہ سکتی۔ یا سے تکبر رہے گا یا فقیری رہے گی۔ پاک پتن کا فرید کہنے لگا منیم واللہ یارا منیم، یہ بابا فرید کا اپنا ذاتی کلام ہے۔ منیم واللہ دا معنی ہے اللہ دی قسم میں نہیں، اللہ دی قسم میں نہیں، اللہ دی قسم میں نہیں، اللہ دی قسم میں نہیں۔ جدو وچوں میں نکل جائے پھر فرید ہو جائے ہے۔ آئے آئے، جدو وچ میں نہ رہے پھر فرید ہو جائے ہے۔ اور بولو ہے جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جدو وچوں میں نکل جائے نا پھر فرید ہو جائے ہے۔ جنی دیر میں ہوئی ہے پھر مولوی تے ہو سکیدا ہے، لیکن فرید ہون واسطے میں ہی تے کڈنی پیندی ہے یار۔ یہ تو ہو جائے اتنے درویش ہو جاندہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بابا جی تھے، انہوں نے خیال کیا بھائی میں آج تو بعد میں نہیں کہنا، آج تو بعد میں نہیں کہنا۔ شاہ جی جتھے فقیر ہونا اتھے لفنڈر بھی ہوندے نے۔ کچھ کن ٹوٹیاں نے سوچیا آج بابا جی دے منہ میں کڑا کے چھڑ رہا ہے۔ وہ سارے صلاح کر کے بابا جی دے کول آ گئے۔ آج بابے نے وہ میں کڑانا ہے، میں نہیں کہنا۔ بابے نے ارادہ کیتا میں نہیں کہنا آج تو بعد۔ مسٹنڈے ارادہ کیتا میں کڑا کے چھڑاں گے۔ مسٹنڈے کٹھے ہو کے آگے بابا جی کہہ رہے کہ بابا جی ایک مسئلہ تے دسو۔ آپ نے پوچھو پتر، یہ جدو اللہ فرمایا سی فرشتیو آدم نو سجدہ کرو، فرمایا بالکل۔
शैतान नहीं सी कीता, फरमाया नहीं सी कीता। उन्हें फिर की आख्या सी? उन्हों का ख्याल ये कह कि अना खैरु मिनहु, मैं आदम से बेहतर हूं, ते मैं ते आ गया। जदों इन्हां दे मुंह मैं निकलेगा असीं एक दूजे होज मारांगे भाई मैं ते निकल आया मुंह। जदों उन्हें पूछा शैतान की आख्या सी, बाबे उन्होंने वेख के टाइम की होया है, कहंदा असर दी नमाज दा टाइम है, ते फिर मैं पढ़ आया। कहंदा नहीं, ते फिर पहले नमाज पढ़ लईए फिर जवाब दे लेने आ। वो कहने लगा नमाज पढ़ लो। बाबे उरी जमात वास्ते अगे खलोगे, पीछे सारे नमाज पढ़न लग पे। नमाज असर तो फारग होके ना बाबे उरा पलट के उहदे मुंह करके पूछया वो किथे भी जिन्हें सवाल किया सी, वो आंदे जी मैं वहां आपने, मैं वो भी यही आंदा सी। अल्लाह को मैं नहीं पसंद। अच्छा मेरी गल सुनो, तुहानू पता है हजरत सुलेमान जदों यानी वो तख्त बलकीस दा बुलाया सी, मंगवाया सी, रुक जाओ चलो मजा लैन दियो, माशाअल्लाह। बलकीस दा तख्त जदों हजरत सुलेमान मंगवाया सी ते एक जिन उठया सी, याद आया? चलो मैनू पढ़न दियो ताकि समझ आए की होया सी। सुभान अल्लाह। काला या अय्युहल मलऊ, 39 नंबर आए थे, की होया है? कमाल है, तुसी इत्थे क्यों बैठे हो? सुभान अल्लाह। सूरह नमल है, 27 नंबर सूरह है ते 39 नंबर आए थे। काला या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा। आहो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदर, मोहम्मद यार हाजी ख्वाजा कुतफरी। अच्छा अटेंशन अटेंशन, अच्छा अच्छा बेटा ये ना लाइट मेरी तरफ कर दो और पुत्र इधर करो, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ मेरा बच्चा। ये कौन सा को नाथ खंजड़ा आंदा है कि ए बामा चुको है, हाथ चुको है, ए भी चुको, इत्थे बह जा मेरा पुत्र, मैनू जरा पीर भाई बैठे ने गल्लां करन दे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भी की गल हो रही है? हजरत सुलेमान दा दरबार लगा है जी, ते सुलेमान फरमांदे ने अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो मेरे पास ले आए, मेरे पास तख्त ले आए। इस सुलेमान नबी सन, अल्लाह नु आंदे तख्त लिया दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा नबी सन आप ले आंदे। हाँ जी, ये सामने जेडे बैठे ने वली सन, ये नबी वलियां कोलों क्यों मंगदा है पिया? शान नबूवत च कमी नहीं होंदी पई, शरीयत समझाई जा रही है कि वलियां कोलों मंगना शिरक नहीं होवेगा, सुन्नत होवेगा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं गिबला, मतलब पाक बदन जाके मंगना शिरक नहीं है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं आप? काला इफरीतु मिनल जिन, एक बड़ा खबीस जिन बोला। अच्छा जिन वड्डा, खबीस का माना वड्डा सारा जिन उठया, एवं खबीस पंजाबी वाला नहीं लेना। नबी दा सहाबी जिन ने यार, ओ सहाबी जिन ने गलीज दिल नबी पाक दा, वलौ कुंता फज़न गलीज़ल कल्ब, मुस्तफा तेरा दिल बड़ा गलीज है। वो गलीज दा मन होंदा बड़ा नरम है। ओए लन फद्दू मिन हौलिका, ऐ बंदे तेरे आसे पासे तां ही इकट्ठे ने, तेरा दिल बड़ा नरम है। हुण इत्थे मैं तोनू आखा नबी पाक दा दिल बड़ा गलीज है ते डंडे लैके मेरे पीछे नहीं पड़ना। ये अरबी वाला गलीज है, इनू पहले समझ लेना है। गलीज दा माना नरम हुंदा है, इत्थे खबीस दा माना वड्डा सारा जिन खलोता है। हुजूर दा सहाबी होया फिर, लेकिन इहदे कोलों तख्त मंगवाया नहीं नबी ने, क्यों? की गल हुई है? हुण ठहरे जी। काला इफरीतु मिनल जिन अना अतीका बिही कबला अन तकूम मिन मकामिक इन्नी लकवियुन अमीन। सुभान अल्लाह। सुनाओ जनाब। एक बड़ा खबीस जिन बोला हाँ। कि वो तख्त हाजिर मैं कर दूंगा। लो जी, पहला लफ्ज है मैं। सुभान अल्लाह। की लफ्ज है मैं? आगे इससे कबल कि आप इजलास बर्खास्त करें, और बेशक मैं दूजी बारी आया मैं। सुभान अल्लाह। तुहाडे वाली गल नहीं रहन दियो, मैं चले
फिर सुनो, जिंदे मुंह पहले की निकले, मैं ले आवांगा सरकार, मैं ले आना, फिर की आंदा है सरकार मैं है वा ना, तुसी बैठे रहो, वो तुसी बैठे रहो। चलेंगे। अच्छा चलो पढ़ो आगे। अच्छा, उसने कहा बेशक मैं इस पर कुव्वत रखने वाला मैं फिर पे आंदा है ताकतवर हाँ, फिर और अमानतदार और मैं अमानतदार हाँ। अल्लाह फरमाया नबी इनू थले बिठा, इनू नहीं पता नबी के सामने मैं नहीं आखीदा, इनू नहीं दसिया किसी रब नू मैं नहीं पसंद। कोई फकीर कड सुलेमान जिदे च मैं ना होवे। अच्छा हुण मैनू इजाजत देंदे हो मैं अगे पढ़ा की होया। लो जी, काल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब। अब उसने अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था। फकीर उठे है तो जेड़ा आलिम भी है, ओ सख्या अनाती का। उसने कहा हुजूर मैं इसे रुक हासिल जाओ, कर दूंगा। सारा मजमा मेरे वाल देखो। तुसी आखो शाह जी इन्हें नहीं तो मैं आख्या, ये मुंह ते निकले मैं, इन्हू क्यों नहीं थले बिठाया। अगे सुनो, इस आख्या लै ते मैं आवांगा इलई का तरफ अयर तद्दा इलई का तरफुक की एक पल मारने से पहले। फिर किवें और नहीं अयर तद्दा इलई का तरफुक दा माना है सोनिया तू इंज वेख ते दोबारा फिर तू मेरे वाल वेख ते फिर मैं ले आवांगा। एदा मतलब ए ओ उठे है जिन्हें आख्या जे तू नजर करे ते मैं ले आवांगा, जे तू नजर करे ते मैं। अल्लाह फरमाया आए वली, आए वली जेड़ा करके भी आखे कि मैं नहीं करदा पिया तेरा ही करा मैं। कोई गल दी समझ आ रही है जनाब। अल्लाह को मैं नहीं पसंद, जब इंसान में से मैं निकलती है फिर वली हो जाता है। अच्छा अच्छा शाह साहब सूरह अल हज दी आयत पढ़ा दियो, 22 नंबर सूरह, 46 नंबर आयत पढ़ा दियो। नहीं 40 पढ़ाओ फिर लंबी हो जाएगी गल। कितना टाइम हो गया है और कितना टाइम हो गया? 32 मिनट हो गए, 32 मिनट 44 मिनट हो गए, मैंने बोल दे 13 तो 44 31 हो गई, 31 मिनट हो गए। चलो एक आयत और ले लो। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक इल्ला अन यकूलू रब्बुना अल्लाह। चलो जो फटे हैं उन छड़ देने, अगो पढ़ लेने। सुभान अल्लाह। वो जिथों मर्जी पढ़ो पाक पतन निकलना ही निकलना है। अल्लाह दी कसमें जिथों मर्जी पढ़ो ना, अल्लाह दी कसमें, कुरान दी कसमें जिथों मर्जी पढ़ लो पाक पतन ते निकलना निकलना। पाक पतन निकलो बगैर चारा कोई नहीं है थे। वलौला दफुल्लाह किथे खुल गया किथे, वलौला दफुल्लाह नासा बादुहुम बिबादिन लहुद्दिमत सवामिउ व बयाउ व सलावातुम व मसाजिदो युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा। जे तुसी 31 मिनट थक गए हो तो फिर छड़ देने। स्पीकर ते मैं भी परा कीता है ना, कट्ठे रल के बोलने पे, मैं चोखा बोलना पे जनाब। लौला दफुल्लाहि नासा बादुहुम बिबादिन लहुद्दिमत सवामिउ व बयाउम व सलावातुम व मसाजिदो युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा। जनाब और अल्लाह अगर आदमियों में से एक दूसरे को दफा ना फरमाता, लऊ अगर, ला नहीं, दफुल्ला अल्लाह दफा करता, अगर अल्लाह दफा ना करता, बादुहुम कुछ अन्नास कुछ बंदियां नू, अगर अल्लाह कुछ बंदियां नू दफा ना करदा, बादुहुम भी बादिन कुछ बंदियां दे जरिए ना,
ओए मुंडियो, आदम दे कुछ पुत्र ने जिन्होंने अल्लाह दफा कीता है ते कीता कुछ बंदियां दे जरिए नाल। अल्लाह आंदा जे मैं दफा ना करदा और इन्हां दा वस चलदा। लो जी तुसी लफ्जन ब लफ्जन तर्जुमा पढ़ो ताकि मैं सुना। और अल्लाह अगर आदमियों में एक दूसरे से दफा ना फरमाता तो जरूर ढा दी जाती। अगर उन्हां दा वस चलदा ते ओ ढा देंदे की खानकाहें की खानकाहें हां जी खानकाहें तुसी फिर आखो की आख्या जी दरबार कुरान चो निकल आया। तुसी फिर आखो की आख्या जी दरबार शरीफ कुरान चो निकल आया। ते जेड़े दरबार ढान फिरन ना अल्लाह आंदा है मैं इन्हां दफा कीता है। हाय हाय जेड़े दरबारां दे वैरी हो जान अल्लाह आंदा है मैं इन्हां दफा कीता है। मैं फिर बयाना खानका है। खानका का माना क्या है? दरबार। अल्लाह आंदा है जे मैं इन्हां बंदियां नू मगरों ना लांदा इन्हां दा वस चलदा ते ए दरबारां नू ढा देंदे। एदा मतलब है ये जेड़े दरबार वसदे ना पे इन्हां दी राखी अल्लाह पे करदा है। हाय इन्हां दी राखी कौन पे करदा? अल्लाह इन्हां दी राखी करदा है पिया। जे इन्हां बंदियां दा वस चलदा है ढा देंदे। खानका दरबार का क्या माने बेटा? दर दरवाजा, बार खुला, जिदा बूआ 24 घंटे मखलूक लई खुला रवे ना ओनू दरबार आंदे ने। आस्ताने का क्या माने? मनफात बख्श जगह, सुबह शाम जहां मखलूक को फायदा हो उसे आस्ताना कहते हैं। खानका किसे कहते हैं? जेड़ी नुकरे लग के यार नू याद कीता जाए उसे खानका कहते हैं। सज्जादा नशीन किसे कहते हैं? नशीन नशिस्त को कहते हैं, कुर्सी को कहते हैं। सज्जादा सजदा करने वाला ओ जगह जिथे वड्डे बह के सजदे करते रहे ने अगों जेड़ा वड्डियां दे सजदे दे भार चुक के उथे बह के वड्डियां दी जगह ते सजदे करे उसे सज्जादा नशीन कहते हैं। हाँ जेड़ी गल एवे ओ एवे कि हुण सज्जादा नशीन होवे जिन्हों प्यो दे पराडो दी चाबी लभ जाए। हाँ जी दरबार होवे जिहदी अपनी जेब भरी होवे। खानका होवे जिथे मुजरा हुंदा होवे। आस्ताना होवे जिहदी औलाद नूं फायदे लभदे होण। बस ना आस्ताना आस्ताना है, ना खानका खानका है, ना दरबार दरबार है, ते ना कोई सजादा नशीन है। वरना ये सारियां शैवां ते कुरान से निकलियां हैं। यहां ठंडा बोले आपको मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ये सारी चीजें तो कुरान की है, ये तो सारी टर्मिनोलॉजी कुरान की है। एक बारी फिर पढ़िए कुरान। जनाब शाह जी छड़ दे उठान। और अल्लाह अगर दफा ना फरमाता और अल्लाह अगर आदमियों में एक को दूसरे से दफा ना फरमाता तो जरूर ढा दी जाती है। खान साडे लाहौर आके बंदे आंदे ने पाक पतन जाना बिजनेस दे मामले च कदी बाबा फरीद सलाम नहीं करके आया। उकाड़े जाना कारोबार दे मामले च कदी करमाला सलाम नहीं करन गया। कसूर जाना जाके कारोबार करके आना बुल्ले शाह नूं कदी सलाम नहीं कीता। जेड़े बंदे तुहाडे कोल बह के एक गल आखन ना उन्होंने ध्यान नाल वेख्या करो ते समझिया करो। ये नहीं दरबार गया, इनू ते अल्लाह मगरों लाया है। जिन्नू अल्लाह मगरों ला छड़े चिश्ती साहब वो पाक पतन कारोबार कर सकता है, बाबा फरीद नूं सलाम नहीं कर सकता। बाबा फरीद नूं ते सलाम वो करेगा ना जिन्नू अल्लाह मगरों नहीं लाया। शाह साहब मगरों लान दा उलट की हुंदा वाला गल ना लाना। उन्हें गल नहीं मैं कह सकता फरीद नूं सलाम वो करदा है जिन्नू अल्लाह गल ना लाया है।
जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह जी। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। आपको समझ आ रही है? इस आयत में थोड़ा आगे पढ़ो मला। हाँ हाँ तुसी तर्जुमा दे दो, मैं आयत पढ़ ली। ढा दी जाती खानकाहें और गिरजे और कलीसे और मस्जिदें। मस्जिद आ गई है, मस्जिद आ गई है। मस्जिद कितने नंबर पे आई है? पहले सब तो किया है खान का, फिर गिरजे, दरबार पहले आया। मेरा पुत्र जवेद के अंदर दरबार पहले आया जनाब। दरबार अल्लाह ने पहले रखे है, दरबार अल्लाह ने पहले रखे है यार। तुहाडा की कसूर है यार जेडे दरबारां दे वैरी हो गए हो? तुहाडे प्यो दादे दा है जू नहीं? साडा कसूर कोई नहीं, असी मौला अली दी औलाद है, साडे नस्लां दे दरबार ने यार। मैं मक्का शरीफ तो आया है, हुण मदीना शरीफ मस्जिद नबी दी छत ते मैं चला गया। उत्थे एक लाइब्रेरी सी, लाइब्रेरी दे अंदर मैं चला गया। तारीखी कुतब वल मैं गया, उतो मैं तारीख मक्का कड्डी, तारीख मदीना कड्डी, बाद तस्वीर मौजूद है। तारीख मदीना कड के उहदे विचों मैं हजरत अब्दुल्ला दा घर लभा। मस्जिद नबी को 500 दे करीब ज़ियारात मैं कढ़ लईयां। मैं कढ़ लई कि हजरत जाबर दी बकरी नूं छुरी किथे फेरी सी। मैं लब लिया अबू अयूब अंसारी दी कोठी केड़ी है। ए सबद गुंबद वेखिया तुसां? उहदे नाल जेड़ा चिट्टा जिहा गुंबद है ना, अबू अयूब अंसारी दी कोठी सी। तो मैं 500 ज़ियारात उहदे चों कढ़ लईयां। ਉਹ ਜਦੋਂ मैं पुत्र मियां थोड़ा तवज्जो यार, ਉਹ ਜਦੋਂ मैं थोड़ा जिहा मस्जिद नबी तो अगां ਉਹਦੇ अंदर जन्नतुल बकी दे अंदर होया ना, जन्नतुल बकी दे अंदर तारीख मदीना दे अंदर सऊदी अरब दे अंदर मदीने दी मस्जिद नबवी दी लाइब्रेरी दे अंदर जिहड़ी किताब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़हरा पाक दावी दरबार बने है, बिल्डिंग बनी है, उत्ते रोज़ा बने है, उस्माने गनी दा भी दरबार बने है, उत्थे सारे सहाबा दे दरबार बने ने। उन्हां तस्वीरां विच जेड़े बंदियां ढाए ने अज ते उन्हां ढा के आख्या जी शिरक हुंदा पिया ते बिदअत हुंदा पिया ते हराम हुंदा पिया ते ये हुंदा पिया ते वो हुंदा पिया। उदों मैनू समझ आई अच्छा 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 अल्लाह जिन्हों मगरों ला छड़े ना वो दरबार ढा देंदा है। हाय भाई बोलो जिसे समझ आ रही। हाफिज हो? ओके नहीं नहीं ठीक। सुभान अल्लाह। वो आयत कर सकते हो, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, तो कर लो। आज असल असल पता है की गल जी, गल पता है की है, बंदे आंदे ने वली ठीक ने, दरबार भी ठीक ने, फातिहा पढ़ लांगे जाके वो भी ठीक है, कबर की ज़ियारत भी कर लांगे जाके, सब कुछ ठीक है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर ना जाना नहीं चाहिए दरबार। क्यों जी? रुक जाए जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है और जवाब ले लेने। सुभान अल्लाह। मौजूदा दौर निकल आई 158 नंबर आया था। अच्छा ठीक है ठीक है, जाना नहीं चाहिए। उन्होंने पूछने भाई क्यों नहीं जाना चाहिए? वो आंदे नहीं दो चीज़ां नहीं, एक ते पाक पतन जाओ ते औरतां मर्द कट्ठे ने, शरीयत दी इजाजत नहीं देती। पीरां दे जिन्ने दरबार ने वो बेहयाई दे अड्डे बन गए। देखो सवाल, और देखो शहबाज कलंदर पाक साडा दरबार है, लेकिन उत्थे वाकई इसी तरह ही औरतां सिर तो दुपट्टे ला के वालां दे नाल रक्स करन, ये जी कोई शरीयत नहीं ना, जुल्म है ना। अच्छा वो फिर बंदे आंदे असीं सूफी लोग हाँ, नमाजी लोग हाँ, असीं ऐसी जगह ते नहीं जाना चाहते। एक गल यानी उत्थे ज़ना कारी आम है, उत्तों तुसां जांदे सारी सजदे च पै जांदे हो, यह भी शिरक है।
अच्छा, ये भी गल ठीक है, शिरक है, गलत है। शिरक और बेहयाई तो बचन वास्ते दरबार नहीं जाना। दरबार का कसूर कोई नहीं, दरबार तो ठीक है, अल्लाह के वलियां दी मिज़ारात ने, असी ऐलान इदा इनकार नहीं करते असी, लेकिन तुसां सुन्नियां उन्हां आस्ताने नूं शिरक और बेहयाई दे अड्डे बना चुके हो। तो जिन्हों ये बेहयाई और शिरक दे अड्डे ने, तो फिर असी क्यों जाइए? असी तो शरीफ लोग हाँ, असी तो जाने अपना रायवेंड। भाई मैं किसी मकतबे फिक्र दे दिल शिकनी वास्ते नहीं कह रहा, वैसे समझान नहीं कह रहा। बाय द वे गल है यार, इनू किसी मेरी पूरी गुफ्तगू किसी मकतबे फिक्र दी दिल शिकनी वास्ते नहीं है। पिंड दे वाले हदीस दी बंदी मेरे को आके बैठे होंगे ने, तुहाडे सारे सुनते ने आके कि सरकार आए ने तो उन्होंने कुरान पढ़ना है, तो इत्थे कोई दिल थोड़ी तोड़ना है तुहाडा। उंज गल पे करने आ कि उन्हों दा सवाल ये वे कि शिरक दे अड्डे ने। ये जवाब मैनू मक्के जाके मिले है, इस गल का जवाब मैनू मक्के मिले। किबला मियां तारक, जदों मैं सफा मरवा ते दौड़ लाई है ना, ते ओ जदों बंदा इंज करके जांदा ना, तो मरवा दी पहाड़ी जिहड़ी सफा दी है ना, उहदे उत्ते एक गुंबद जिहा है, उहदे विच एक आयत लिखी सी, वो है आ गई है सामने, शावरा कढ़ ली है, ते मैनू इजाजत दिओ ते मैं पढ़ ला। सुभान अल्लाह। इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अवे तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा व मन ततव्वा खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरन अलीम। लो जी, आयत पढ़ी गई है पूरी, सुभान अल्लाह कह जनाब। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। रुक नहीं मैं सकता इस गल ते, अल्लाह दी कसमें खलो जावां ते दिन चढ़ जाए। चलो बर्दाश्त करना, आगे चलो। सफा मरवा पहाड़ियां ने, अल्लाह दियां निशानियां, अल्लाह दियां निशानियां ने। अच्छा फिर, तो जो इस घर का हाजी या उम्रा करे, सफा मरवा अल्लाह दी निशानियां किथे लिखे? ए लिखे है। अच्छा, ए वेंदे पे वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात दे नाल लिखे है, बिल्कुल नाल लिखे है। इस आयत दा इस आयत नाल की तल्लक है? सुभान अल्लाह। जेड़ा अल्लाह दी राह विच मरे ओनू मुर्दा नहीं समझना, वो मरिया भी जिंदा है, जिंदा है वो। इस आयत दे नाल ए आयत क्यों जुड़ी है कि पहाड़ियां अल्लाह दी निशानियां ने? मौलाना मेरा तखस्सुस है कुरान पाक में ना, मेरी तखस्सुस फिल कुरान है, स्पेशलाइजेशन है मेरी कुरान में। कुरान में एक बहुत बड़ा बाब है, उसे कहते हैं रब्ते कलाम, कलाम का आपस में ताल्लुक, पिछली आयत का अगली आयत से क्या ताल्लुक है। इसमें बड़े उलमा का काम है, लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी का इसमें कमाल कलाम है। आप अगर फखरुद्दीन राजी की तफसीर पढ़ेंगे तो आपको ये बड़ा ही खूबसूरत मिलेगा पॉइंट कि पिछले कलाम का अगले कलाम के साथ क्या ताल्लुक है। रहमतुल्लाह पिछली आयते वे कि मुर्दा अल्लाह दी राह वाला जिंदा है, उन्होंने मुर्दा नहीं कहना। अगली आयते वे कि सफा ते मरवा पहाड़ियां ने जड़ियां अल्लाह दियां निशानियां ने। निशानी जड़ी है ना, वो बंदे नू मंजिल तक लैके आउंदी है। मैनू सखी शाह पूछे आज किधर जाना है, मैं क्या 54, मैनू आंदा है वो चौक तो इधर परतना है। मैनू क्या बिल्कुल वो चौक उस चक की निशानी है, यानी वो जी तुहानू चौक चक तक लैके आया ना, वो चौक तुहाडे चक की निशानी है। निशानी बंदे नू मंजिल तक लैके आउंदी है। अल्लाह फरमाया ये दो पहाड़ियां बीबी दी निशानियां नहीं, मेरिया निशानियां ने। ये दो पहाड़ियां बीबी दियां निशानियां नहीं है, किदियां निशानियां ने? मेरियां निशानियां ने। ते पिछली आयत इस आयत नाल जोड़ के आंदा है, जिथे इस्माइल दी अम्मा दे पैर दी तली लग जाए, मैं ओ पत्थरां नूं भी मरन नहीं देंदा। अल्लाह दी कसम ठंडा बोले हो, तकलीफ हुई है मैंने। तुहाडी सोच होगी दुनिया तक आवाज किथे तक चली जानी और किस उलमा तक आवाज चली जानी है। मैं दोबारा ये जुमला दोहरान लगा, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात कह के इन सफा वल मरवता नाल जोड़ के आंदा पिया। ये ते बीबी दे पैर जिथे लग जान, ओ पहाड़ियां नहीं मरदियां, बंदे किथों मर गए ने?
समझ आ रही है ना आपको? पता चल रहा है ना? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह सुनाओगे। लेकिन सवाल अपनी जगह पर कायम है। सवाल ये है कि शिर्क और बेहयाई के अड्डे पर शरीफ आदमी क्यों जाए? सुभान अल्लाह। आपके पाक पतन में औरतें मर्द इकट्ठे हैं, बेहयाई का अड्डा है, और आपके वहां पे शिर्क है। शिर्क और बेहयाई के अड्डे पर शबाज कलंदर सूफी क्यों जाए, शरीफ क्यों जाए? नेक आदमी शिर्क वाले या बेहयाई के अड्डे पर क्यों जाए? अपनी फैमिली को क्यों लेकर जाए वहां पर? तुसी इजाजत देंदे हो मैं अगे कुरान पढ़ा? जवेद मेरे काने च आख्या बाबे का खत्म दुआया आज 18 देगा पकाई और मैं फिर बाबे कटने जाना हूं यार। उन पढ़िया तो कुरान ही जाता है ना पिया। अच्छा अटेंशन, तवज्जो है जी सबकी? बिल्कुल तवज्जो कर। इंज सफा मरवा दे थले लिखे है इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सुभान अल्लाह। की तर्जमा है? तर्जमा करो आगे। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। ठीक है, ये में से है, ये सारी निशानियां नहीं, मतलब कोई और भी निशानियां हैं में। अच्छा चलो आगे। तो जो इस घर का हाजी या उम्रा करे, जो इस घर का हाजी या उम्रा करे, उस पर कुछ गुनाह नहीं कि वो इन दोनों के फेरे करे। वो अल्लाह फरमांदा है कोई गुनाह नहीं कि इत्थे आके भी वो चक्कर ला के ही जाओ। रुक जाए जी, उन बड़ी क्रिटिकल मरहला है बेटा, आप किधर देख रहे हैं? सुभान अल्लाह। रुक जाए जी, मेरे वाल देखो। कोई गुनाह नहीं है इस बात में कि बंदा सफा मरवा पर भी दौड़ कर जाए। इधर मतलब किसी सवाल कीता है कि ए गुनाह है इत्थे नहीं जाना, ता आए ताइए आए ताइए ता कि किसी नबी पाक नूं पुछया सी कि सफा मरवा ते ना जाइए ना हज ते उमरे च। जदों उन्हें आख्या ना जाइए ना, उदी कोई वजह सी। उदी की वजह सी? सुभान अल्लाह। तुहाडा की ख्याल है? ये आयतां तरावियां वास्ते उतरियां ने? ये आयतां समझण वास्ते उतरियां ने। बेशक। क्या वजह थी? नहीं मेरे बच्चे गलत है। शोबश आसाफ, उच्चा बोलो शाह साहब कीजिए, उच्चा बोलो ना। काबे दे अंदर विच एक औरत सी नायला, एक मर्द सी आसाफ, उन्होंने दुआ बेहयाई की सी। जना तो बाद पत्थर हो गए सन, उन्होंने सफा ते मरवा ते टंगिया गया सी पत्थरां नूं। लोग आके जुतियां मारदे सन। जदों हज ते उमरे दीयां गल्लां आईयां ते सहाबा ने दिल च ख्याल किया कि वो तो बेहया भी ने ते उतों जड़ा ना उन्होंने जुतियां मारी दियां ने ते असीं उत्थे की लैन जाना है? ते अल्लाह फरमाया तुसीं उन्हां नूं नहीं वेखना, हाजरा दे पैरां दीयां तलियां वेखो, उत्थे जाओ, उत्थे जाओ। क्यों? क्योंकि वो शाह साहब एक नस्ल उन्होंने जुतियां मारदी रही, अगली नस्ल नूं समझ आई कि शायद कोई बुजुर्ग ने साडे, वो सजदे च पै गए। बैक वक्त रहमतुल्लाह काबे दे सेन च बेहयाई भी हुई ते शिरक भी होया। ते जदों बेहयाई ते शिरक काबे दे सेन च होया ते फिर भी विद फैमिली जा रहे हो? नहीं जी, वो ते होया, उहदे नाल साडा तलक नहीं, ये ते अल्लाह दा घर है ना। वो ते होया, उहदे नाल ते साडा तलक नहीं, ये ते अल्लाह। ओए जो जिथे हुंदा है ना वो ते हो ही जाना है। ना काबा छड़ सकने आ, ना फरीद छड़ सकने आ। ना तुसी काबा छड्डो, तुहानू बेहयाई ते शिरक वाली जगह ते तुसी सूफी साहब नहीं जाना चाहते ते फिर काबे की लेन दे हो? छड्डो काबा। ते जे अल्लाह दा घर नहीं छड़ दे ते वली अल्लाह नू क्यों छड़ दे हो पे?